some of the resources are not used. This is what the very big question. So, the problem of scarcity and its consequences could be illustrated with the help of a curve, with the help of a line. The curve, the line is known as PP. The curve that illustrates the problem of scarcity and its consequences. Production possibility curve, और it is also known as production possibilities frontier. एक लाइन है, एक कर्व है जो बताता है कि whether the resources are being used or not. ये वो लाइन है जो डिस्क्राइब करता है resources का efficient effective utilization हुआ है या नहीं. ठीक है ना? Production possibilities curve. Production possibilities curve. Production possibilities frontier. So therefore, first step is that how to define this production possibilities curve. How to define this production possibilities here. In short, in one statement, in one sentence, I would say that a line that describes the limits. Whatever resources you have, how much goods and services produce? A line that describes the limits to production. एक ऐसा लाइन है प्रोडक्शन की औकात बता देता है, प्रोडक्शन की लिमिट बता देता है. How? For an example, you see, it's a very common example I generally give to students. For example, I say you have 20 tons of steel. The resources you have. This is what the resources you have at any particular time. I say now you have only 20 tons of steel, and you can produce. For example, car. You can produce motorcycle. I agree. You can produce car. You can produce motorcycle. You can produce X. You can produce Y. Car means or Y means X. You can produce X and Y. These commodities will be produced. I further assume that 2 ton steel is required to the car, 1 ton steel is required to produce the motorcycle. My assumption? Well, अगर हम 2 टन स्टील को एफिशिएंटली तरीके से मतलब वेस्टेजेस को अवॉइड करें, आप बिल्कुल इस तरह से मिसाल है. एफिशिएंट एलोकेशन की बात ये होती है कि बिल्कुल आपने देखा होगा घरों में ऐसा होता है. आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैट अगर इनको रोटी पकाना नहीं आता, मैं इनको रोटी पकाने के लिए खड़ा कर दूं किचन में, तो आग जाएगा, रोटी जल जाएगी, दुनिया के तरह के नक्शे बनेंगे दुनिया के, और अच्छी को मरी बनेगी, टेस्टलेस रोटी बनेगा. लोग कहीं से पक्का होगा, पक्का वाला इंसान उससे खा नहीं, कच्चा वाला फेंकेंगे. Resources आए. हमने talked about even the general example देना आप फौरन समझ. Same procedure we adopt in industry. मुझे भाई मैं लैपटॉप बना सकता हूँ, मुझे मोबाइल में लगा दोगे तो मैं इतना एफिशिएंट नहीं रहूंगा. मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ, मुझे अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए खड़ा कर दोगे उतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ाऊंगा. Resources should be actively allocated. So, for an example, अगर 2 टन स्टील वही है, कितना आता है, जिनको बनाना आता है, जिसको नहीं बनाना आता है, देखो. तो अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 2 टन स्टील का एफिशिएंटली यूज करोगे तो एक कार बनाओगे. 1 टन स्टील का सही से इस्तेमाल होगा तो एक बाइक. ठीक है, आप बोलेंगे प्लास्टिक यूज होता है, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आए. Well, ठीक है. If I say I have decided to produce only car, so therefore I will allocate my total resources to produce car. So therefore the question is how much car should be produced? 10.
10 कार बन जाएगा। अगर रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हुआ तो आप 10 कार यानी कि 10x बना लोगे। एनी प्रॉब्लम? मैं कहना चाहिए अब मैं कार नहीं बना रहा हूँ। I will produce only motorcycle. So therefore the question is that how much? 20. 20 of what? Either I can produce a combination. मैंने कहा कि 5 कार आप बोलोगे ऐसे सर 5 कार मोटरसाइकिल के साथ बन जाएगी। ठीक है चलो 5 कार का मतलब है 10 का स्टील यहाँ लग गया, 10 का स्टील जाएगा, 20 10 से आपने this any combinations could be produced if resources are being used. तो ये जो maximum production है 10x इसका मतलब ये है 0y 20y with 0x and Yes, sir. तो इसका मतलब है कि different combinations of goods could be produced if resources are being utilized. अभी लाइन नहीं ड्रॉ किया मैंने, अभी कर्व मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एक ऐसा कर्व है, पॉसिबिलिटीज बताता है प्रोडक्शन अभी कर्व that describes the possibilities of what? Possibilities of production. How goods and services could be produced if all resources and state of technology are being used. So therefore, this is the optimum quantity of goods and services produced. How can you say that the 10 car or 0 bike or 20 bike is 0 car or the 5 or 10? Because you know how much resources you have. And as you know how much resources is required to produce a single bike. So therefore you can say this is what the maximum quantity of goods and services can be produced. It means you know the limits to production. आपको पता है production की limit because you know the resources. You know how much resources is required to produce. So therefore this entire could be explained with the help of the curve. And curve is known as production possibility. So therefore we can say that we are producing commodity X, we are producing commodity Y, and this is what the line is called production possibilities frontier, the production possibilities curve. Production possibility curve क्या है? एक ऐसा line है that describes the limits to production. What is production possibility? Production possibility is nothing but a line that shows different combination of goods that can be produced when all available resources and state of technology are being used. What do you mean? Nothing but different combination. You are at point this, you are producing only Y. You are at this point, you are producing only X. This point. Or in between, any combinations could be produced. कोई भी combination कर सकता है. So therefore, that's why we say the production possibilities curve shows different combinations of two commodities that we produce if all economies, resources, and stage of technology are being used very efficiently utilized. Of course, my dear, whenever you want to quantity of one, you must have to reduce the quantity of other. Why? आपका दिल चाहता नहीं. अब देखिए ना, मैंने कहा ना 10 कार, बाइक एंड 5 कार बना लेंगे. बिल्कुल बना सकते हैं जो रिसोर्सेज हो. मैंने कहा नहीं मुझे तो 6 कार बनाना. आप कहेंगे ओके, सो देयरफॉर आपको 2 बाइक कम करना पड़ेगा. ऐसा हो सकता है कि 10 बाइक के साथ 6 कार बना लें? ना पॉसिबल नहीं है. We need to turn more steel. Resources is fixed, so therefore, in order to increase the quantity of one commodity, production of one commodity, we must have to reduce the quantity of other. Why? Because resources are fixed. Of course, therefore, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है. Now, this is what the production possibility is called. And हर कर्व का एक slope होता है, rate of change होता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है इसके स्लोप को कहते हैं हम आर पी टी या एम आर टी या आर पी टी. अच्छे से समझ आ जाएगा.
RPT, rate of product transformation. RPT means of product transformation. या MRT, marginal rate of transformation. 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 आप विजन क्या बनाए बेटा? हाँ बेटा, जिससे आपने क्या है और बड़ा तौर RPT, rate of product transformation. MRT, marginal rate of transformation. This is what basically the slope of production possibilities curve. The slope of possibilities curve is called marginal rate of transformation. Production possibilities. The slope है ना बेटा, ये slope है. इसका slope है production possibilities curve का slope. सुनिएगा और प्लीज सुन भी जाइएगा. What is the slope of production possibilities? Marginal rate of transformation. भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक कार को बढ़ाना चाहते हो, एक कार की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको दो बाइक यानी दो मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. अदरवाइज क्या इसे ऐसे समझाने के लिए हमने दो मोटरसाइकिल को हमने एक कार में कन्वर्ट कर दिया. अगर एक कार की प्रोडक्शन को कम कर लेंगे तो आप दो मोटरसाइकिल बना लेंगे. तो वैसे दो कार को एक रिसोर्स के फॉर्म में बात कर रहा हूँ. ठीक है, दो मोटरसाइकिल को एक कार में कन्वर्ट कर दिया या एक कार को दो मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर दिया. देखिएगा या आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. किस रेट से कर रहे हैं? 2:1. दिस इज व्हाट द रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, द रेट एट व्हिच वन प्रोडक्ट कैन बी एक्सचेंज विद अनदर प्रोडक्ट. देखिए आप, क्योंकि आपको पता है कि कितना इसमें प्रोडक्शन लगता है, कितना इसमें प्रोडक्शन लगता है. एट व्हिच वन प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट. मुश्किल लग रहा है? अगर मैं कह देता कि एक कार में 3 टन स्टील लगता है तो आरपीटी कितना हो जाता? 3:1. यानी कि अब एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 3 बाइक को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर हो गई बात? दिस इज व्हाट वी कॉल द रेट एट व्हिच वन प्रोडक्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर प्रोडक्ट. किस रेट से एक प्रोडक्ट को अपने लेते उसमें कितना रिसोर्सेज लगा है, दूसरे में कितना रिसोर्सेज लग रहा है और उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करें. समझ में आ गई बात? बिल्कुल. इसको ये प्रोडक्शन में है, ये कंजम्पशन में होती है. पहले भी बताया था कि मिसाल के तौर पर प्राइस ऑफ समोसा इज 20 रुपीज, प्राइस ऑन रोल इज 40 रुपीज. ठीक है ना? तो अब ये आपके जेब में मिसाल के तौर पर कोई भी पैसा है. अब आप देखिए कि तौर पर आपके जेब में 40 रुपए है, 40 रुपए है, तो आप सारा पैसा लगा देंगे तो एक चिकन रोल खा लेंगे, सारा पैसा लगा देंगे तो 2 समोसा खा लेंगे. यानी कि 2 समोसा बराबर है एक चिकन रोल के या नहीं? 2 समोसा 40 रुपए में, एक चिकन रोल 40 रुपए में. इन दिस टर्म 2 समोसा इज इक्वल टू 1 चिकन. अगर मुझे 2 समोसा खाऊंगा तो एक चिकन रोल को छोड़ना पड़ेगा, एक चिकन रोल खाऊंगा तो मुझे 2 समोसा छोड़ना पड़ेगा. आर यू गेटिंग मी? तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ समोसा विद चिकन रोल इज 1:2. If I want to take 1 chicken roll, I have to sacrifice and vice versa. तो समोसा और चिकन का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसी तरह से मैं एक कार प्रोड्यूस करता हूँ, मैंने बताइए कितना स्टील लगेगा? 3 टन. ओके. मोटरसाइकिल कितना छोड़ना पड़ेगा? बताइए मोटरसाइकिल में कितना पैसा लगता है, कितना लगता है? ओके. सो देयरफॉर टू प्रोड्यूस द सिंगल कार वी विल सैक्रिफाइस 3 बाइक. ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है. मजे की बात ये होती है कि मैं आपको लेवल पे यही तो इक्वेशन से होता है, जो एलोकेशन में से होता है. आप ये देखिए कार इज एक्स. ठीक है,
5 is y. 2 ton S 3 ton. 3 ton steel is required to produce 1 car. Yes, sir. 1 ton steel is required to produce 1 bike. जितनी प्रोडक्शन हो जब सम करेंगे that should be less than equal to 20. इक्वेशन इस तरह से इक्वेशन डेवलप होता है. तो कोएफिशिएंट इतना मीनिंगफुल है जो नंबर होते हैं, इतना मीनिंगफुल मैं बताना चाहता हूँ. बहरहाल तो आपके साथ बताएंगे कितना मीनिंगफुल है. आप नॉट हियर टू टीच यू. आधा करने की करते हैं फरमाइश. क्वेश्चन नंबर 9 लीनियर है. आपकी बातों से लगता है कि सर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं. नहीं, हम लोग सर वो है थोड़ा सा को भी क्लास समझ के वो करार स्कूल होता है नहीं है हाथ मिला ठीक है. इतना मैं नौकरी करता हूँ. अगर नौकरी करते हैं वो प्रोफेशनल कोलीग होते हैं क्या आप प्रोफेशनल कोलीग से जुड़े हो. आप नेगेटिव एक्सपेक्टेशन आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे. प्रोफेशनल कोलीग से या जीरो एक्सपेक्टेशन रखें या बिल्कुल नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखें, आपको कोई नुकसान हो जाएगा. फाइनली आप बिटवीन रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन. I'm telling you. और एक बात बता दूं, दोस्त तो वो होता है जिसके करने से ज्यादा क्या होता है. मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊं. ये मैं बुजुर्गों की महफिल से सीखा है. मैंने ये जुमले मैं आपको बोलता हूँ ना, ये यकीन कीजिएगा बहुत टाइम लगा के बुजुर्गों की महफिल से सीखा है. तो आपको ये रिपोर्ट टाइम आप तक में ट्रांसफर करता हूँ. तो दोस्त थोड़ी होते हैं कि when you start laughing and just taking burger and food and then friendship. पढ़ते चलते आपके पास कुछ अगर आप किसी रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई मसाइल का सामना नहीं है तो रुक जाए और सोचे. तो therefore no problem at all. मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करना हो तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है. मैं इकोनॉमिस्ट मेरा को हाईलाइट करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको इंप्लीमेंट करना. दिस व्हाट माय थॉट इज. मैं देखता हूँ कि गाँव के बाद में आप ट्रेकिंग जाके लोग गंदा पानी पीते हैं, सुबह खाते हैं, तो गंदा पानी पी रहा हूँ. चलो मिल तो रहा है ना, लोगों को भी नहीं मिला. अफ्रीका में चले जाए मिलियन को पेट्रोल किया सफेद को अंदर मिली तो मर रहे पता नहीं. तो काउंटलेस लोग मर रहे हैं. ये जो है तो मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, आज तुमने जो बिस्किट खाया ना इससे गलत असर हो गया. बिस्किट पैसे कम दिए ना क्या कर लेते बात रेता नहीं होता लेकिन सुसु खाने वाला रेफरेंस के अंदर क्या है आप ओल्ड एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन इन न्यू पैकेजिंग. This is what we call expired medicine in new packaging. So anything could be. Now one thing more.
मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता सर ऐसा हो गया लगता है। बस तो production possibilities curve. Okay, the slope is marginal rate of production. The slope is rate of product transformation. अब इसका एक और term लेकर इसका slope. The slope of production possibilities curve. एक और term, एक और definition. Production possibilities. I'm talking about the same production possibilities. एक तो है कि आप कहते हैं ये रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, मीनिंग भी बता दिया है, या रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. एक और स्लोप को एक और मीनिंग देते हैं, एज फॉर द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कंडीशन. इट इज रेशियो ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू कमोडिटीज. द रेशियो बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टू कमोडिटीज, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X प्रोड्यूस कर रहे हैं, Y प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, X मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X मतलब कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. I mean cost of producing 1 unit, cost of producing 1 unit of Y. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आती है. Cost of producing an additional units of output. Cost of producing an additional units of output. भाई सीधी सी बात है. अब आप बोलेंगे यार समझ में आ गई. अब मैं कहता हूँ कि मैं X बना रहा हूँ और मैं Y बना रहा हूँ. कोई कार बाइक, ठीक है ना, आप कुछ और ले लें, कोई कैफेटेरिया में ले लें, कार से बाइक से चले जाएं, एलसीडी भी लेकर चले जाएं, सीडी भी लेकर चले जाएं, आप जहाज बनाने लग जाएं. That depends upon your ability, your specialty, your specialization and resources you have. अब क्या है कि X बनाते हो, एक X मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X, एक X बनाने में मुझे 10, एक X बनाने में 10, Y बना रहे हैं, एक Y बनाने में मुझे 20 रुपए. वही चीज देखिए, वही चीज है. तो देयरफॉर अगर मैं Y की तादाद को बढ़ाना चाहता हूँ एक, तो मुझे 2x की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. यू सी, marginal cost of X is 10, marginal cost of Y is 20, so therefore the slope is 1/2. The slope is 1:2. To produce one Y, you have to sacrifice 2x. To produce 2x, you can buy 2x. तो देखा आपने कैसे कह दिया, आपको पता है दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसमें कितना पैसा लगेगा. तो अनदर वे सिंपल गाइस, अगर मैं कह दूं कि इसका मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो बताइए y कितने में बन जाएगा. तो देखिए मैं कहता हूं इसकी मार्जिनल कॉस्ट है 10, मुझे y की मार्जिनल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं स्लोप जो है 1/2 है. y ऊपर रेंज में मल्टीप्लाई कर दे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y तो आप स्लोप इज बेसिकली दैट शोज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आने पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सही है कि अगर दो चीजों की बनाने की कीमत पता है तो आप उसका स्लोप मालूम कर सकते हैं. लेकिन फीचर्स है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का की कुछ फीचर्स को हम स्टडी करें ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू assumptions. So therefore write down the heading of features of production possibilities curve. The features of production possibilities curve. Number 8.
attainable and unattainable. Attainable and unattainable. The first feature possibility curve. Attainable and unattainable. The second feature of the same curve is full employment and C. Trade-off and freelance. Attainable and unattainable, full employment and unemployment, trade-offs and freelance. Three features we discussed as far as the production possibilities curve is concerned. Let's see one. One by one. We are talking about attainable and unattainable. Commodity Y, commodity X, and this is the production possibility. Okay, production possibility. मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, the point of the production possibilities, the point under the productivities, and the point outside of the production possibilities. Along the production possibilities, outside and under the curve. See, my dear, अगर कोई भी point, ये point नहीं है, this is what the combination of production. Actually, this is not something. This point represents combination of production. A, how much X and Y will be produced. B, explain it as well as C. कितना X प्रोड्यूस हो रहा है, कितना Y प्रोड्यूस हो रहा है. आसान सी बात है, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, इतना X इतना Y, इतना X इतना Y, इतना X इतना Y. Then explain these points, explain the level of production. लेकिन if the production is a production possibility curve, whatever may be the point, if the productions are along the production possibilities curve, that shows efficient production, resources are being used, no wastage, कोई wastage नहीं हुआ, resources are fully utilized, efficient. So therefore, whatever, if the productions are along the curve, the productions are efficient and attainable. इकोनॉमिक्स में एफिशिएंट ग्रेड क्या है? ए है. ये आपके लिए अटेनेबल है या नहीं? अटेन कर सकते हैं. अगर ए अटेन कर लिया, रिसोर्सेज आज भी इस्तेमाल हुआ है. इसका मतलब समझ रहे हैं ना? दिस इज व्हाट आई मीन. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का यही बता रहा है कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हर पॉइंट अटेनेबल है और हर पॉइंट अटेनेबल के साथ साथ वो एफिशिएंसी को भी शो कर रहा है. अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंडर है आप, इफ द प्रोडक्शन इज अंडर द कर्व, ऑफ कोर्स अटेनेबल. अरे भाई, जब ए अटेनेबल है तो बी क्यों नहीं है? बी
सी क्यों नहीं है? अटेनेबल तो है ना, सी क्यों नहीं है? ओ भाई एफ तो और कुछ नहीं करो तो एफ आ जाएगा। Okay, whatever the grade is under the A is attainable, but all these grades are inefficient. So therefore, if the production is under the curve, attainable but inefficient. ये तो अजीब सी बात है। attainable 20 टन स्टील से 10 कार बना सकते हैं, तो 5 तो बहुत आसान से बढ़ जाएगा। काट काट के फेंकते भी जाओ फिर भी बन जाएगा। वही वाली बात हो गई, अटेनेबल बट इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट मतलब है रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं, आप समझ रही बात, रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं। और when we talk about outside means out of your budget, out of your limit। 20 टन स्टील से 10 कार बनेगा, 20 टन स्टील से 15 कार नहीं बनता, क्योंकि 2 टन का काम 1 टन के लिए एक मार्केट। तो पॉइंट सी इज ऑफ कोर्स unattainable। पॉइंट ए इज एफिशिएंट एंड अटेनेबल। अगर ये कॉल दोबारा आ गई ना तो मैं क्लास ऑफ अब सब लोग मान रहे हैं मेरे पैर बच गए। सलाह भी तो माने। अच्छा भाई इनका सवाल पूछ लीजिए। ये ग्रेड है, अंकल ये ग्रेड है आपके तो अलग चीज है। सर सेम दोबारा रिपीट कर देंगे, आपको समझ में? भाई समझ लीजिए, 40 रुपए है जेब में, एक समोसा 10 रुपए का है, कितना खाएंगे? कितना समोसा अटेनेबल है? आप कहते हैं मुझे 20 समोसा चाहिए, अटेनेबल है, वो आपके लिमिट से बाहर है। जब पॉइंट डी प्रोडक्शन पॉसिबल से बाहर है, इतनी प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है जो रिसोर्सेज है आपके। हाँ, एफिशिएंसी कहाँ से जाएगी? अटेनेबल ही नहीं है वो, क्या होगा? अनअटेनेबल है। एफिशिएंसी उसकी बात करेंगे, इस रिसोर्सेज का बनना चाहिए, इतना बन गया एफिशिएंट है, कम बना इनएफिशिएंट है। इस रिसोर्सेज से 2000 बन ही नहीं सकता, बाकी नहीं। वो तो वही बात कर दी आपने कि 100 में से 105 नंबर दे कैसे देते? पॉसिबल ही नहीं है। 100 में से 105 नंबर कैसे देते? ये वो वाली बात है। 100 में से 105 नंबर अनअटेनेबल एंड ऑफ कोर्स 110 में से 105 नंबर अटेनेबल, बाकी बात। लेकिन जो अवेलेबल नंबर का ग्रेड है उसमें से 101 नहीं मिलता, 100.1 भी नहीं मिलता, अनअटेनेबल। करेक्ट? आगे इसमें सॉल्व के साथ तस्वीर नहीं आती है, ऐसे उछल के देख रहे हो। हमें इसीलिए मोबाइल रखता हूँ ताकि नहीं बात तो आप रिस्क नहीं होते, जीरो रिस्क होते। आप चले जा रहे हैं, बात करते चले जा रहे हैं, दूर से नहीं आएगा वहाँ पे। चीज हलाल की तो कभी नहीं सर, ये ऐसी कोई फजूल बातें ही है, बहुत सारे ये फजूल कॉन्सेप्ट पर्सनल चीज सर
के पुरजोर इस्लाम के रेहान के इंट्रोडक्शन जो कुछ पढ़ाया हर चीज सर अभी जो पढ़ा अभी 10 मल्टीपल चॉइस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन अगर आप सपोर्ट होंगे बिहार आ जाए क्लास प्लीज In the year of 2005, I completed my matriculation. In the year of 2007, I went intermediate from Federal Board. And after that, I applied for the MBA program in Delhi University. I applied towards the PIE graduation program. But fortunately, I was selected for PIE first, and I got registered as a trainee engineer in PIE for the years of 3.5 training at the Polytechnical Training Bureau. 1 year of training was conducted at Pakistan Air Force Academy, Salpur. The rest of the 1 year training was conducted at Pakistan Airline Training Center, and remaining 1.5 years was conducted at Polytechnical Training, New York. After the completion of it, I gained 6 months of practical experience on Boeing 777 and appeared on the aircraft license of European Air Safety Agency in London, securing 94% marks in that. Became the youngest engineer in the world. I am awarded with 2 letters of appreciation from Boeing Manufacturing Company, one for converting cargo into a passenger one, and the rest of the letter of appreciation for the Boeing 777 mandatory time-based modifications on all PIA. I am awarded with my Boeing Fleet Award, which is awarded for those personnel who have attained a good achievement in maintenance of the Boeing 777 fleet only. And amongst the young engineers of PIA, my number is 7. I'm an engineer. And the one who is 8